Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We have started chapter number 3, which is about the chemical bonding, and this is our second lecture about bond length and bond energy. Now, this lecture is based upon student learning outcome, which states that use bond energy values and the concept of bond length to compare the reactivity of the covalent molecules. इस लेक्चर से हमारे स्टूडेंट्स ने ये बात लर्न करनी है कि बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। इसी तरह बॉन्ड लेंथ क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, और ये दोनों जो कंसेप्ट हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, इससे हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बॉन्ड एनर्जी से। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। सपोज वी हैव methane molecule. This is a methane molecule. Its quantity is 1 mole. That is, there are 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Now there exists covalent bond between 1 carbon and 4 hydrogen atoms. Now, in order to break the covalent bond between carbon and hydrogen, that is, in order to break up into 4 hydrogen atom and 1 carbon atom, the amount of energy required is equal to 1662 kilojoule per mole. Now this is the amount of energy which is required to break the 4 covalent bond between carbon and hydrogen in 1 mole of methane. Now, in order to determine the energy required to break 1 carbon hydrogen bond in 1 mole of methane, we'll divide it by 4. So it comes to be 415.5 kilojoule per mole. This energy is known as the bond energy. So bond energy is defined as the average amount of energy, the average amount of energy which is required to break covalent bonds between two atoms in 1 mole of substance is known as bond energy. It is also known as the bond enthalpy. This is also known as bond enthalpy or enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization.
It is measured in the units of kilojoule per mole. Now, in the same way, consider the molecule of HCl. Now, amount of energy which is required to break HCl molecule, 1 mole of HCl molecule in 1 mole of hydrogen atom and 1 mole of chlorine atom, will also be known as its bond energy, and this bond energy is equal to 431 kilojoule पर मोल. बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक बॉन्ड स्ट्रेंथ से है. अगर दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड स्ट्रांगर होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी. अगर बॉन्ड वीकर होगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी. सो बॉन्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिपेंड करते हैं और वही फैक्टर बॉन्ड एनर्जी को भी जो है वो डिटरमिन करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. फर्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सपोज कीजिएगा दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज 2.1 and this is 2 and this is 4. Due to difference in the electronegativity, the bond will be polar. Now, polarity of bond depends upon the electronegativity difference. Greater the electronegativity difference, more will be polarity and stronger will be the bond between two atom. अगर दो एटम के दरमियान electronegativity difference ज़्यादा होगा तो ऐसा बॉन्ड जो है वो पोलर होगा. और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी दो एटम के दरमियान, पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी होगा और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, आप HCl में देखिए कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 का है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस इज 1.9 और बॉन्ड एनर्जी this is equal to 567. This is 567 किलोजूल पर मोल. अब यही हम देखते हैं डाटा HCl में कैसे है. In HCl, electronegativity of hydrogen is 2.1, that of chlorine is 3, and difference of electronegativity, this is equal to 0.9, and bond energy is equal to 431 kilojoule per mole. 431 kilojoule per mole. तो HCl में ये बॉन्ड एनर्जी HF की निस्बत लेस क्यों है? इसलिए कि HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से पोलैरिटी कम है एंड बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द HF. सो इट्स बॉन्ड एनर्जी इज 431 किलोजूल पर मोल. इन केस ऑफ HBr, hydrogen 2.1, bromine is 2.8, electronegativity difference is equal to 0.7 and bond energy is equal to 366 kilojoule per mole.
So bond is even less stronger, less bond energy. और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कम है। और अब आखिर में आप इसको कंपेयर कीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड, hydrogen 2.1 and electronegativity of iodine is 2.5. Electronegativity difference is equal to 0.4 and bond energy is equal to 299 kilojoule per mole. So greater the electronegativity difference, more will be the polarity of molecule, stronger will be the bond and more will be the bond energy. तो इस तरह अगर आपको कोई से दो मॉलिक्यूल दिए गए हों तो आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करके आप उनकी पोलैरिटी कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। Now the second factor which affect the bond strength and the bond energy is the atomic size. Second factor is atomic size. Now smaller atoms like two hydrogen atom will have the perfect overlapping of their atomic orbitals, perfect or complete overlapping. There will also be stronger nuclear force of attraction of two atoms for this shared pair of electron, and hence bond will be the stronger. अगर एटम स्मॉलर हों, उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली ओवरलैप करेंगे। मोर ओवर स्मॉलर एटम में न्यूक्लियाई की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। सो व्हाट विल बी द आउटकम? अ स्ट्रॉन्गर कोवल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, लाइक इज बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 37 picometer. Smaller atoms are overlapping to form the molecule. Bond is stronger, reason मैंने आपको बताई. And what is the bond energy? Bond energy is equal to 436 kilojoule per mole. अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा, क्लोरीन एटम्स लार्जर इन साइज, they overlap through their 3pz orbitals. Larger orbitals, they less perfectly overlap. इनका एटॉमिक रेडियस भी जो है वो लार्जर है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड वीकर होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है ये 99 पिकोमीटर बनता है। इट इज 99 पिकोमीटर। लेस परफेक्ट ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड लेस स्ट्रॉन्गर होगा और बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की 242
किलोजूल पर मोल। इसको जो आप जाहिर कर सकते हैं, इसको अपने एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, 2 क्लोरीन एटम्स, this energy delta H is equal to 242 kilojoule per mole. So smaller atom bond is stronger, bond energy will be greater. Larger atom bond will be weaker and bond energy will also be less. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक और एटम्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये, आप इसको कंपेयर कीजिए, कार्बन के साथ कंपेयर कीजिए। दिस इज अ कार्बन एटम। कार्बन एटम अगर सिंगल कोवल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो अपने sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। सपोज दीज आर द sp3 orbital of one carbon and sp3 orbitals of second carbon. When sp3 orbital overlap, single covalent bond is formed. Now, in this bond, single covalent bond between two carbon atoms, the atomic size of carbon is 77 picometer. It is 77 picometer, and the bond energy delta H, this is equal to 348 kilojoule per mole. Student, third factor which affect the bond energy is bond order. Bond order mean number of covalent bonds, number of covalent bonds between two atoms. Now, bond strength increases with increase in the number of covalent bonds. It means that double covalent bond is stronger as compared to the single covalent bond, and triple covalent bond will be in turn stronger as compared to the double covalent bond. क्योंकि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between two atoms. So what will happen? The force of attraction, nuclear force of attraction for these pair of electron pairs will increase, and this will in turn increase the bond strength and bond energy. Increase in bond strength and bond energy. There will be increase in
bond energy. So suppose we have three molecules. They are ethane, ethene, and ethine. This is ethene and ethine. Now, bond energy of carbon-carbon single covalent bond. This is equal to 348 kilojoule per mole. Bond energy 348 kilojoule per mole. Bond energy of double covalent bond is greater as compared to the single covalent bond, but not twice of 348. Bond energy of carbon-carbon double bond. This is equal to 614 kilojoule पर मोल. अब क्या वजह कि डबल कोवल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इस सिंगल कोवल बॉन्ड से ट्वाइस क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि कोवल बॉन्ड जो है ये टू टाइप्स के हैं. सिंगल कोवल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज सिग्मा बॉन्ड, वेयर एज अ डबल कोवल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म इन डिफरेंट वे बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. तो इस वजह से डबल कोवल बॉन्ड में एक तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, एक वीकर बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड के ट्वाइस नहीं होगी. एंड इन द सेम वे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स में टू पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है. तो बॉन्ड एनर्जी इज नॉट 3 टाइम एज कंपेयर टू द सिंगल कोवल बॉन्ड. इट इज इक्वल टू 839 किलो जूल पर मोल. उसकी वजह यह है कि ट्रिपल कोवल बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दो वीकर बॉन्ड पाई बॉन्ड्स हैं. So in this way, the third factor which affect the bond strength and the bond energy is the number of covalent bond. जितने ज़्यादा कोवल बॉन्ड्स होंगे यानी सिंगल डबल ट्रिपल, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी. Now the fourth factor which affect the bond energy is bond length. Bond length. Bond length is the average distance between nuclei of two atoms held by a single covalent bond. Average distance between nuclei of two atoms held by a single covalent bond is known as bond length. अब दो एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो स्टैटिक नहीं होते, वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं. तो उनकी बॉन्ड लेंथ कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है.
तो इसलिए जो है वो हम बॉन्ड लेंथ को यूं भी डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम लाइक हाइड्रोजन एटम when their orbitals have maximum overlap with one another. Say this is maximum overlap between two hydrogen atom. This is the electron pair which is shared. Now the distance between nuclei of these two atoms when they have maximum overlap, this is equal to 74 picometer, and this is the bond length of hydrogen. The average distance, the average distance between the nuclei of two atoms, nuclei of two atoms, when there is a maximum overlap, maximum overlapping of their orbitals. तो अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, shorter bond length, there will be a strong bond, a strong bond with greater bond energy, greater bond energy, whereas a longer bond length, longer bond length that will be comparatively weak bond, and it will have the less bond energy. तो आप इसकी एग्जाम्पल देखिएगा कि इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल bond length is bond length, this is equal to 198 picometer, 198 picometer. Bond energy is equal to 242 kilojoule per mole. In case of larger bromine molecule, bond length is equal to 228 picometer, and bond energy is equal to 193 kilojoule per mole. In case of still larger iodine molecule, bond length is equal to 266 picometer, and bond energy is 151 kilojoule per mole. So we are observing that with increase in the bond length, the bond strength is decreasing, and the bond energy is becoming less and less. लेकिन इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो इन चारों हैलोजन मॉलिक्यूल से कम है. फ्लोरीन bond length is equal to
bond length, this is equal to 149 picometer. 149 पिकोमीटर। और इसकी बाउंड एनर्जी जो है, बाउंड एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 158 किलो जूल पर मोल। 158 किलो जूल पर मोल, जो कि यूं कह लीजिए कि ब्रोमीन से भी कम है, ये ब्रोमीन से भी लेस है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है ये भी साइज ऑफ एटम से रिलेट करती है। तमाम हैलोजन पर जो है वो 3 लोन पेयर मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बाकी इन मॉलिक्यूल में भी बॉन्डेड एटम पर जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसकी जो रीज़न जो है वो ये है कि फ्लोरीन जो है ये एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइजेस बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इन लोन पेयर के दरमियान जो है वो रिपल्शन होगी, रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स। इन लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीकर हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। So these are the 4 factors which affect the bond energy। इसमें आखिरी फैक्टर जो हमने देखा है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ को जो डिफरेंट जो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उनमें से एक फैक्टर अभी आपने देख लिया। दिस इज द साइज ऑफ एटम। With increase in the size of bonded atoms, there is increase in the bond length, and with increase in the bond length, there is decrease in the nuclear force of attraction for shared electron pair। bond weaker होता चला जाएगा और इस तरह बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। दिस इज द एटॉमिक रेडियस। इसके अलावा जो मज़ीद फैक्टर जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं इनमें एक तो आपने देखा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो एक सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एंड दिस बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोवल बॉन्ड। मिसाल के तौर पे कार्बन कार्बन सिंगल कोवल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ जो है दिस बॉन्ड लेंथ दिस इज इक्वल टू approximately 154 picometer। carbon carbon double covalent bond length is approximately equal to 134 picometer, and carbon carbon triple bond length is approximately 120 picometer। Reason is that with increase in the number of covalent bond between the atom, there will be increase in electron density, there will be increase in the nuclear force of attraction for the shared electron pair, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आते जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर दीज मो इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक और फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है बॉन्ड लेंथ को दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सपोज कीजिए कि 2 कार्बन एटम
ये अपने sp3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन का sp3 ऑर्बिटल। इसको थोड़ी सी बड़ी फिगर आप यूं बना सकते हैं कि दिस इज कार्बन एटम, this is sp3 orbital of the first carbon atom, sp3 orbital of second carbon atom, both are sp3 orbitals। और sp3 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। और फर्ज कीजिएगा कि दो एटम के अगर जो है वो sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ये दीज आर द sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स। तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड लेंथ है ये 134 पिकोमीटर जो हो जाती है। और ये अगर दो कार्बन के sp ऑर्बिटल जो हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसी सूरत में जो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर है। इन फैक्ट sp3 ऑर्बिटल में 25% करेक्टरिस्टिक s ऑर्बिटल्स के हैं, 75% करेक्टरिस्टिक p ऑर्बिटल्स के हैं, जबकि sp2 ऑर्बिटल में 33.3% करेक्टरिस्टिक्स हैं s ऑर्बिटल के और 66.6% करेक्टरिस्टिक्स हैं p ऑर्बिटल के। जबकि sp ऑर्बिटल जो हैं, sp ऑर्बिटल में 50% करेक्टरिस्टिक्स हैं s ऑर्बिटल के, 50% करेक्टरिस्टिक्स हैं p ऑर्बिटल के। तो जब s ऑर्बिटल की करेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती हैं, s करेक्टर की परसेंटेज इंक्रीज करती है, तो ऐसी सूरत में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर हो जाता है, दैट इज इट बिकम शार्टर। और जब शार्टर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आखिर में ये कंक्लूड करते हैं कि बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी, इसका एक मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। नहीं, इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ on the reactivity of a molecule. In all the chemical reaction, all chemical reactions, what happens? The bonds in reactants are broken down. Bonds in reactants, they are broken down, whereas bonds in the products, they are produced. बॉन्ड ब्रेकेज रिक्वायर एनर्जी, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो केमिकल रिएक्शन में इजी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। इसको हम एक केमिकल रिएक्शन की मदद से समझते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन
between an alkyl halide, this is methyl fluoride, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं KOH के साथ, this is aqueous KOH. This results in the formation of methyl alcohol, plus the other product formed is KF potassium fluoride. इसको कंपेयर कीजिए एक सिमिलर रिएक्शन के साथ, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड with KOH. This is aqueous KOH. This also result in the formation of methyl alcohol. Plus KCl. इस रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड की पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्टिविटी कम है. दिस इज लेस रिएक्टिव, वेयर एज मिथाइल क्लोराइड, इसकी KOH के साथ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इट इज़ मोर रिएक्टिव. तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न जो है वो ये है कि कार्बन अल्काइल फ्लोराइड में कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, हाई बॉन्ड एनर्जी. हाई बॉन्ड एनर्जी में जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ जाता है, साइज ऑफ एटम भी आ जाता है जो है. और जबकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, लेस बॉन्ड एनर्जी. Therefore, in this reaction, the carbon chlorine bond will be more easily broken down as compared to the carbon fluorine bond. That is, the fluorine atom will be less easily replaced by OH group as compared to in the methyl chloride. तो इसकी रीज़न जो है वो क्या है? इसकी रीज़न जो है द ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एज कंपेयर टू द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. तो ये एक एग्जांपल शो करती है कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी को कैसे डिक्रीज कर रही है. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको ये कंसेप्ट बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का इसको समझने में हेल्प करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज bond energy? Give an example, very simple. Second question, explain how bond energy is affected by atomic size and electronegativity difference. आपने इन दो फैक्टर का bond energy पर इफेक्ट स्टडी करना है. Explain how bond energy is affected by bond length and the bond ऑर्डर. इस क्वेश्चन के आंसर में आपने इन टू फैक्टर्स का बॉन्ड एनर्जी पर इफेक्ट डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4, वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl. आपने डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आयोडीन. इसमें डेफिनेटली एटॉमिक साइज आ जाएगा.
वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन क्लोरीन, इसमें जो फैक्टर आ जाएगा वो फ्लोरीन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन का आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस देन bond energy of a hydrogen. It is greater, not less. It is greater. Bond energy of hydrogen, it is greater. देन ब्रोमीन, इसमें स्मॉलर एटॉमिक रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन का एज कंपेयर टू ब्रोमीन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेस देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड आर्डर जो है इसकी रीज़न आ जाएगी। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। तो इसमें आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो तो रिएक्टिविटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। आप अल्काइल हाइड्राइड और KOH के दरमियान रिएक्शन एज एन एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड आर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी यूजिंग कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज एग्जांपल्स। वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट ट्वाइस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो डिफरेंस है वो रीज़न आ जाएगी। वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन, फिर यही इसका आंसर जो क्वेश्चन रीज़न आ जाएगी लोन पेयर। And describe the effect of atomic size, bond order and hybridization on the bond length. And last is that describe the two factors which affect the carbon-carbon bond length in ethene and ethine. Okay students, good luck.